जहां से अर्थक्वेक शुरू हुआ, एपिसेंटर जिस पॉइंट पे सबसे पहले अर्थक्वेक ने हिट किया उसको हम बोलेंगे एपिसेंटर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो वेव्स होती है आपकी, Good morning students, my name is Manu Malik and today we are going to discuss about earthquake. But before we move forward to the earthquake, let me tell you about the plate tectonic theory because it is a correlated topic, right? So what is a plate tectonic theory? Basically it explains how major landforms are created, right? And this theory is given by Alfred Wegener. So what does this theory say? Basically it is like a broken lithosphere that is resting upon the asthenosphere. What is asthenosphere? A semi-molten layer, right? So to move forward to the earthquake, before we should know what is plate tectonic theory because it is a correlated topic, right? So what is plate tectonic theory? What it will tell you? It will tell you about the major landforms, like why they are created, right? Given by whom? Given by Alfred Wegener. ठीक है. If I have to explain it with a a diagram, we can have this. For example, this is crust, then mantle, then core, right? This is crust, this is mantle, and this is core, right? So this part of mantle is semi-molten in nature, right? This is semi-molten. So we have like broken plates, like tectonic theory. Basically these are parts, these are divided into, we have 7 major plates and so many minor plates, right? So these major plates are floating on this semi-molten layer of mantle. That is why when this mantle move, we feel earthquake, right? And the movement of these plates results what? Earthquake, right? ठीक है, like when two plates collide na, or when two plates move, for example these are two plates and they are moving against each other, or they are convergent or divergent, or there are transform boundaries as well. So when they are moving, so we will feel what? Earthquake, right? For example, there are 3 types that your plate, like your earth plate can move. What are these types? For example, first, they can move in convergent manner, right? Second one, divergent manner. And third one, transform boundary, right? So what are these? For example, if we talk about convergent destruction, मतलब convergent manner की plate are moving in convergent form. Convergent means कि these plates are moving towards each other. Like for example, these are two plates and they are moving towards each other. Then it will be considered as convergent manner. Like why so? For example, 2 plates are moving, right? So what happen? One will be definitely bigger than the other. So it will move towards each other. So what will it cause? It will cause destruction, right? So it will be considered as destructive in nature, right? Second one, divergent. What does it mean? When 2 plates move forward, when 2 plates move to each other, so it will cause construction. Why so? For example, one plate is moving toward this side and second plate is moving towards that side. So it will create this gap, right? So it can, what it can make? It can make plateaus, right? It can make sea floor spreading, right? So that is why divergent manner will always be considered as constructive in nature. Third one, transform boundary. It will be conservative in nature, right? Why so conservative? Because the type of movement the plates will do. For example, one plate is moving towards in this manner and second plate is moving in this manner, right? So there will be no construction and no destruction, right? So that is why it will be considered as conservative in nature. Okay? So these are 3 types of
convergence and divergent and transform boundary, like plate tectonic movements, right? So when plates move, we will feel what? Earthquake. ठीक है? अब for example, just a second. Let me show you something. ठीक है? Like that, what I am telling you कि this is our crust, right? This is upper mantle, lower mantle, outer core and inner core. Upper mantle what? Semi molten in nature. So the crust जो उसके ऊपर है वो क्या करेगा, जब भी ये अपर मेंटल जो है, क्योंकि सेमी मोल्टन है तो मूव करेगा, तो जब ये मूव करेगा तो क्रस्ट जो उसके ऊपर का जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये सेमी मोल्टन है और उसके ऊपर जो क्रस्ट है, तो जब ये मूव करेगा तो इसके ऊपर जो टिका हुआ पोर्शन है वो भी तो इसके साथ मूव करेगा. इसीलिए जब क्रस्ट अपर मेंटल आपका मूव करेगा तो क्रस्ट भी मूव करेगा और उसमें ब्रेक्स आएंगे. ठीक है? अब प्लेट्स मूव कैसे करेंगी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. पहला हो गया डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. फॉर एग्जांपल दो प्लेट्स हो गई, ये आपस में डाइवर्ज कर रही है, मतलब दो प्लेट्स आपस में आके कोलाइड कर रही है. उससे क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब दो प्लेट्स ऑलरेडी फॉर्म्ड है, राइट. अब दो प्लेट्स साथ में आएंगी और मिलेंगी तो जो हैवियर प्लेट होगी वो नीचे जाएगी, जो लाइक लाइटर प्लेट होगी दूसरे के कंपैरिजन में वो थोड़ा ऊपर उठेगी. ठीक है? तो उससे क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा, कोई चीज खत्म हो रही है, टूट रही है, राइट. डाइवर्जेंट मीन्स व्हेन टू प्लेट्स आर मूविंग फॉरवर्ड टू ईच अदर, मतलब फॉर एग्जांपल दो प्लेट्स है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है? तो उससे क्या होगा? आपका दो एग्जांपल, मतलब मैं इसको ऐसे समझाऊं तो डाइवर्ट जब हो रही है तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि ये दो प्लेट्स हो गई, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है? तो उससे क्या होगा? मतलब देखो ये दो प्लेट्स है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है आपकी, एक दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, तो उससे बीच में गैप बनेगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ओशियंस के नीचे सेम चीज होगी. ठीक है? तो बीच में जो लेयर जो गैप बनेगा वहां से क्या हो सकता है? सी, मतलब जो मैग्मा होगा, ठीक है, वो निकल के आएगा, तो फिर उससे क्या होगा? सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगी, प्लेटूज बनेंगे. ठीक है? सेकेंड वन क्या होगा? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यानी कि कन्वर्ज हो रही है, यानी कि एक प्लेट और दो प्लेट आपस में आके टकरा रही है. ठीक है? तो उससे क्या होगा? जो हेवियर प्लेट होगी वो नीचे सबडक्ट हो जाएगी, जो प्लेट लाइटर होगी वो ऊपर उड़ जाएगी. तो उससे क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि जो चीजें ऑलरेडी बनी हुई है वो खत्म हो रही है, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है. तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन इन नेचर, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इन नेचर. ये जो होगी ये होगी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर. एंड द थर्ड वन ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री. इसमें क्या है? ना प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, ना प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है. इसमें क्या हो रहा है? पैरेलली चल रही है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में. तो उससे क्या हो रहा है? ना डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है. तो इस वाली प्लेट को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव इन नेचर. ठीक है? अब फॉर एग्जांपल अब बात करते हैं अर्थक्वेक की. तो जो अर्थक्वेक होता है बेसिकली क्या होता है? दीज आर एब्रप्ट एनर्जीज. व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट अ सेकेंड. बेसिकली these are, just a second, these are abrupt energy creation, right? ठीक है? in the form of seismic waves. ठीक है? like I'll tell you just a second. seismic waves, right? फॉर एग्जाम्पल यहाँ अर्थक्वेक जिस पॉइंट से शुरू होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से अर्थक्वेक आपका इंटीरियर, अर्थ इंटीरियर से यहाँ से अर्थक्वेक शुरू हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम हमेशा बोलते हैं फोकस. यानी कि जहाँ से अर्थक्वेक की स्टार्टिंग हुई, जिस पॉइंट से उसने शुरू किया उसको बोलेंगे फोकस. और जब अर्थक्वेक जाएगा सबसे पहले जिस पॉइंट पे हिट करेगा उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर. क्या बोलते हैं उसको? एपिसेंटर. ठीक है? मैं इस डायग्राम में आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस इज फोकस, यानी कि यहाँ से आपका अर्थक्वेक शुरू हुआ, तो जब उसने हिट किया, जब वो ऐसे जाके चल रहा है, सबसे पहले हिट कहाँ किया? इस पॉइंट पे. तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? एपिसेंटर. तो फोकस जहाँ से अर्थक्वेक शुरू हुआ, एपिसेंटर जिस पॉइंट पे सबसे पहले अर्थक्वेक ने हिट किया उसको हम बोलेंगे एपिसेंटर. ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल जो वेव्स होती है आपकी, ठीक है, अब अर्थक्वेक का कॉज क्या है? मैंने आपको क्या बताया? मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी कि जो प्लेट्स हमने आपको बताई है कि 7 मेजर प्लेट्स होती है, काफी सारी माइनर प्लेट्स होती है, जब वो मूव करेगी, यानी कि जब वो सेमी मोल्टन फॉर्म जब मूव करेगा आपका मेसोस्फेयर, तो जो क्रस्ट होगा वो उसके साथ मूव करेगा. तो जब मूवमेंट होगा प्लेट्स का, उसकी वजह से आपको अर्थक्वेक फील होगा. फॉर एग्जाम्पल देखो ये पॉइंट है, यहाँ से आपका अर्थक्वेक शुरू हुआ, सबसे पहले जिस पॉइंट पे हिट करेगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे एपिसेंटर. ये फोकस हो गया, ये आपका एपिसेंटर हो गया. रीजन क्या है अर्थक्वेक का? मूवमेंट ऑफ प्लेट्स. टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उनके मूवमेंट को हम, उनके मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स होते हैं. ठीक है? अब इसको अगर आप
ग्राफ या फिर डायग्राम के थ्रू समझोगे तो, क्योंकि वेव्स जो है दो तरीके की होती है, ठीक है। एक आपकी होती है जस्ट अ सेकेंड, एक आपकी होती है बॉडी वेव्स एंड सेकेंड वन आर सरफेस वेव्स, राइट। बॉडी वेव्स, ठीक है, सेकेंड वन आपकी हो गई सरफेस वेव्स, ठीक। तो ये दोनों वेव्स है आपकी, मतलब ये आपका बाइफर्केशन है वेव्स का। तो इसमें भी आपके सब पार्ट्स है। फॉर एग्जांपल बॉडी वेव्स आपकी दो तरीके से होती है। फर्स्ट वन यू विल हैव प्राइमरी वेव्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसमें रहेगा आपका सेकेंडरी वेव्स। इट विल बी डिनोटेड बाय P एंड इट विल बी डिनोटेड बाय S, ठीक है। सेकेंड वन सरफेस वेव्स, इसके भी आपके दो पार्ट्स रहते हैं। कौन से दो पार्ट्स? फर्स्ट आपका रहेगा रेले वेव्स, सेकेंड वन आपका रहेगा लव वेव्स, ठीक है। तो जो लव वेव्स होती है ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन होता है वो लव वेव्स की वजह से होता है। ये सबसे ज्यादा वायलेंट वेव्स कंसीडर की जाती है। कौन सी वेव्स? लव वेव्स, ठीक है। अब देखो प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स है, उनमें डिफरेंस क्या है? जो प्राइमरी वेव्स है वो हर मीडियम में ट्रेवल करेगी, यानी कि आपका जैसे ये कोर, मेंटल, क्रस्ट, ठीक है। तो जो प्राइमरी वेव होगी वो इसमें भी ट्रेवल करेगी, इसमें भी ट्रेवल करेगी, इसमें भी ट्रेवल करेगी। जो यानी कि प्राइमरी वेव्स को मैं अगर लिखूं, यहां लिख देती हूं, प्राइमरी वेव्स विल ट्रेवल इन ऑल मीडियम्स, ठीक है, बी इट सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। बट उसकी जो वेलोसिटी है, यानी कि उसकी जो स्पीड है, इट विल चेंज। वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब मीडियम चेंज होगा। वेलोसिटी चेंजेस व्हेन मीडियम चेंजेस, ठीक है। मूव करेगी हर मीडियम में, लेकिन स्पीड जो होगी मूव करने की वो चेंज होगी। वैसे स्पीड कितनी होती है आपकी? वो होती है आपकी 7 किलोमीटर पर सेकेंड, किसकी? प्राइमरी वेव की, ठीक है। अब दूसरी वेव कौन सी है? सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव्स किस में मूव करेगी? जो सेकेंडरी वेव्स होगी वो आपकी ट्रेवल करेगी ओनली इन सॉलिड मीडियम, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? प्राइमरी वेव्स हर मीडियम में मूव करेगी, सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड मीडियम में मूव करेगी। और इसकी स्पीड कितनी रहती है आपकी? ये आपकी रहती है 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो जैसे ये आपका डायग्राम है, ठीक है, इसमें क्या है? ये एस वेव का पैटर्न है, यानी कि सेकेंडरी वेव का पैटर्न है, ये प्राइमरी वेव का है। ये आपका क्या हो गया? फोकस, क्योंकि यहां से आपका क्या शुरू हुआ? अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ। अब देखो ये आपका हो गया सेम मीडियम है, ये प्रॉपर एक मीडियम है, तो इसमें वेव्स सेम वेलोसिटी के साथ जा रही है, ठीक है। अब ये दूसरा मीडियम शुरू हुआ, यानी कि ये सॉलिड मीडियम है। अब जो मीडियम है आपका, जब आप दूसरे मीडियम में जाओगे, यानी कि सेमी मोल्टन स्टेज पे जब आप जाओगे, तो जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। अब ये इस मीडियम से यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन क्यों आया? क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ से जब यहाँ पे हिट किया, यहाँ से फिर से आपका मीडियम चेंज हुआ, तो फिर से आपकी वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है। ये प्राइमरी वेव है, तीनों में मूव करेगी। तो जब ये कोर पे आई, क्योंकि जो इनर कोर होता है वो भी सॉलिड रहता है, तो उसमें भी स्पीड बढ़ी। जब जब मीडियम चेंज होगा तब तब उनकी डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। सेकेंड वन सेकेंडरी वेव। अब देखो सेकेंडरी वेव भी फोकस से शुरू हुई। अब ये मीडियम सेम है आपका, यानी कि ये सॉलिड मीडियम है, ये क्रस्ट वाला मीडियम है। तो इसमें अब यहाँ पे जैसे ही कोर पे आई, जैसे मेंटल में आपका एस्ट्रोनॉस्फेयर है, वो भी क्या है? सेमी मोल्टन इन नेचर, यानी कि लिक्विड नहीं है बट सेमी मोल्टन है, प्रॉपर सॉलिड भी नहीं है, लेकिन उतना सॉलिड है कि मूव करेगी आपकी, ठीक है। तो जैसे ही कोर पे हिट किया किसने? सेकेंडरी वेव ने, तो वो वहीं पे रुक गई। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लिक्विड का है, लिक्विड से बना हुआ है। तो जो सेकेंडरी वेव है वो अंदर नहीं जाएगी, वो यहीं रुक जाएगी। उसका फायदा क्या है? अब देखो जैसे यहाँ तक इस फोकस, इस आपके एपिसेंटर से, यानी कि इस फोकस पॉइंट से यहाँ तक आपकी वेव ने हिट किया, इधर में यहाँ तक हिट किया, तो ये जो पूरा पार्ट है ये आपका बच गया, यानी कि सेव हो गया। जो अर्थक्वेक आएगा वो सिर्फ इतने पार्ट पे आएगा। ये जो पार्ट है ये शैडो जोन कहलाएगा। शैडो जोन क्या होता है? अभी शैडो जोन बेसिकली होता है आपका अनअफेक्टेड एरिया बाय अर्थक्वेक्स। शैडो जोन क्या होता है? अनअफेक्टेड एरियाज ड्यूरिंग अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक के टाइम पे जहां जहां पे अर्थक्वेक नहीं आए हैं, जो एरिया बच गया है उसको हम बोलते हैं शैडो जोन,
ठीक है, उसका एंगल कितना है, ये इसमें एंगल भी आपका मेंशन है। सेकेंड वन, प्राइमरी वेव में भी शेडो जोन्स बनते हैं, लेकिन वो कम बनते हैं, छोटे बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी वेव्स है वो तीनों मीडियम्स में मूव कर सकती है। अब देखो यहाँ तो प्रॉपर आपका इतना ज्यादा, ये क्या है, प्रॉपर शेडो जोन है। प्राइमरी वेव्स का जो शेडो जोन रहेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना ये एक हो गया आपका, ठीक है। दूसरा ये वाला जो पोर्शन है ये आपका शेडो जोन है। तो प्राइमरी वेव्स में जो है शेडो जोन कम बनता है, सेकेंडरी वेव्स में जो है शेडो जोन बड़ा बनता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वेव्स हर मीडियम में मूव नहीं कर सकती, सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही आपकी शेडो जोन जो है मूव करेगी, इसीलिए, ठीक है। अब अगर इसको हम ग्राफ के मतलब ग्राफ के फॉर्म में समझे तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया फोकस पॉइंट, ठीक है। तो ये एक लाइन है आपकी, यानी कि एक सेंटर है जहां से आपका अर्थक्वेक शुरू होगा। अब सपोज ये हो गई आपकी सेकेंडरी वेव, ठीक है। अब एक ही पॉइंट से दोनों वेव शुरू होंगी। ये हो गई आपकी प्राइमरी वेव्स। अब देखो जैसे ही इसका ट्रेवल होगा पहले वो राइज करेंगी। राइज क्यों करेंगी? क्योंकि सॉलिड मीडियम है। सॉलिड मीडियम में स्पीड कितनी रहती है प्राइमरी की? 7 किलोमीटर पर सेकेंड, और सेकेंडरी की कितनी रहती है? 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्योंकि सॉलिड मीडियम है तो दोनों राइज करेंगी। अब उसके बाद क्या होगा? मीडियम चेंज होगा तो उनकी जो स्पीड है वो दोनों की क्या होगी? कम होगी। तो एक पॉइंट ये आ गया जहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब दोनों में स्टीप गिरावट आई, मतलब बहुत गिरावट आई। क्यों आई? वो आपकी स्पीड कम क्यों हुई? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, इसकी वजह से आपकी वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है। अब ये गिरा, अब उसके बाद फिर आपका मीडियम चेंज होगा, यानी कि क्रस्ट से आप लोअर क्रस्ट में गए, फिर आप मेंटल में गए, तो आपके मीडियम्स चेंज होंगे, ठीक है। जब एक ये पॉइंट आया, राइट, अब ये आपका यहाँ पे मीडियम फिर से चेंज हुआ, तो ये प्राइमरी वेव जा रही है, ये आपकी सेकेंडरी वेव जा रही है, दोबारा से आपकी वेव ऊपर गई, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जाके हम कहां तक पहुंच चुके हैं? मानो ये आपका हो गया, तो हम यहाँ पे, ये प्राइमरी वेव वाला हो गया, ये सेकेंडरी वेव हो गया, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं आउटर कोर पे। आउटर कोर क्या होता है? लिक्विड इन नेचर। तो जो सेकेंडरी वेव होगी वो क्या होगी? यहीं पर रुक जाएगी, यानी कि जो सेकेंडरी वेव है ये इसके आगे मूव नहीं करेगी। और जो प्राइमरी वेव है उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? आपकी गिरावट आएगी, ठीक है। क्यों? आपकी स्पीड है, यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। अब फिर उसके बाद क्या होगा? फिर आपका इनर कोर आएगा। इनर कोर क्या है? आपका सॉलिड है, तो फिर से क्या होगा? उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो प्राइमरी वेव का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, सेकेंडरी वेव का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, लेकिन वो आउटर कोर पे जाके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि जो आउटर कोर है वो आपका लिक्विड इन नेचर है, और जो सेकेंडरी वेव्स है वो आपकी क्या होती है? सिर्फ सॉलिड मीडियम्स जो होते हैं उसी में आपका वर्क करती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट earthquakes, plate tectonic theories, okay. Rest we will discuss in the next class. Thank you so much.